Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. In the name of Allah, I hope you guys are doing well. So we are starting our topic today, which would be your lecture number 17 according to your course outlines. So the topic would be synchronous generators. This would be the chapter 5 of your textbook by Stephen J. Chapman, 4th edition. And in this lecture, we would discuss about synchronous generators, what are synchronous generators, their constructions, and what should be the speed of rotation of a synchronous generators. So we're starting from here. We already discussed that every machine, electrical machine, is a device that performs electromechanical conversion. So that machine, irrespective that that machine is a AC machine or a DC machine, it should have a two parts. It should have a stator, which is the stationary part of the machine, and it could be called as the outer part of the machine, which should be the stator. And inside the rotating part of the machine that involves the rotation, that involves in the induction process, is called as the rotor. And if we classify this machine with respect to the windings, it should have a two windings, field winding and the armature winding that we have already discussed, but I'm just overviewing here. The field winding is a winding that produces the main magnetic field in AC machines. That field winding can be located on the rotor and it can be located on the stator. So for the AC machines, that field winding is located on the rotor. Therefore, it is called as the field winding or the rotor winding. This is opposite to the DC machines because in case of the DC machines, that field winding is on the stator. Next winding is the armature winding. Armature winding is that winding where the voltage has to be induced. For AC machines, this winding is located on the stator. Therefore, this is called as the stator winding or armature winding. But that should be the opposite of the DC machines because in case of the DC machines, this armature winding is on the rotor. But for the sake of time, we are discussing the AC machines. So field winding is called as the stator winding and the armature winding is called as the so field winding is called as the rotor winding, while armature winding is called as the stator winding. And two classifications of AC machines are synchronous machines. Synchronous machines are where the DC current is supplied by a separate DC source that is responsible for the production of the magnetic field. So normally all of the generators, 90% generators are based on the synchronous machines. So 90% generators are called as the synchronous generators, while induction machines are those machines where field current is supplied by the phenomena of mutual induction transformation action. That's why this is called as the induction machines indicated by its name. And normally 90% of today's motors are based on the induction phenomena. So that's why 90% of the motors are induction motors while generators are synchronous generators. So we are starting from the synchronous generators, then we will move towards the induction motors. Synchronous generator constructions, synchronous generators, but they're also called as the alternators, are synchronous machines that use to convert the mechanical power to the AC electrical power. Because these are generators, so we know that they should be perform the mechanical to the electrical conversion, and because they're synchronized, so that should be convert the mechanical energy to the AC electrical energy. So synchronous generator के केस में जो DC current है, because we already know that the armature field winding is now on the rotor and the armature winding is on the stator. So यहाँ पे because it is indicated by its name, हमने synchronous के केस में पढ़ लिया था कि DC field winding rotor के ऊपर है, तो यहाँ पे हम external source use कर रहे होते हैं field winding field को produce कराने के लिए magnetic field को that is involved in the phenomena of induced voltage. So इसके लिए हम क्या करते हैं, DC current source लगाते हैं on the rotor winding that will produce a rotor magnetic field. The rotor is rotated by a prime mover because rotor rotating part of the machine है, तो it is located moved around a fixed axis. ठीक है, क्या होगा कि इस रोटर को हम रोटेट करा रहे होंगे by any external source which is called as the prime mover. Prime mover कोई भी external device है that is responsible for the rotation of the rotor. ये कोई भी डीजल इंजन हो सकता है, स्टीम टरबाइन हो सकती है, गैस टरबाइन हो सकती है, वाटर टरबाइन हो सकती है, इवन आपका हाथ हो सकती है या कोई और मोटर हो सकती है, irrespective कि आप किस टाइप की जनरेशन कर रहे हैं, प्राइम मूवर जो है वो रोटर को रोटेट कराएगा. And because rotor is already producing a magnetic field, so that will, due to the rotation of the rotor, it will produce a rotating magnetic field within the machine. So we would have rotating magnetic field means we would have a rate of change of flux
and that rotating magnetic field induces a three-phase set of voltages within the stator winding, because आर्मेचर वाइंडिंग जो है हमारे पास स्टेटर के ऊपर है, तो हमारे पास रोटर की रोटेशन की वजह से हमारे पास थ्री फेज सेट ऑफ वाइंडिंग्स जो स्टेटर के ऊपर प्लेस्ड है, इस वजह से हमारे पास थ्री फेज वोल्टेजेस जो हैं वो आपके पास स्टेटर में प्रोड्यूस हो जाएंगी विद इन द थ्री स्टेटर वाइंडिंग्स विच आर डिस्प्लेस 120 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, बिकॉज स्टेटर के ऊपर जो वाइंडिंग्स है वो फिजिकली 120 डिग्री पे डिस्प्लेस्ड है, इसलिए आपके पास जो है ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द रोटर एंड द रोटर हैज अ मैग्नेटिक फील्ड इन इट, तो इसकी वजह से हमारे पास जो है ड्यू टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स वी वुड हैव अ इंड्यूस वोल्टेज इन अ स्टेटर। अब स्टेटर में हमारे पास थ्री सेट ऑफ वाइंडिंग्स है, तो थ्री सेट ऑफ वोल्टेजेस जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएंगे इन अ स्टेटर। दिस इज हाउ वी कैन गेट द AC three phase AC voltage in case of a synchronous generator. And the rotor of the synchronous generator is essentially a large electromagnet, because ये induction phenomena नहीं है आपके पास, ये DC सोर्स हमें लगाना पड़ रहा है इलेक्ट्रिकल सॉरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराने के लिए, सो दैट्स व्हाई इट शुड बी अ लार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेट। अच्छा, अब जो आपके पास रोटर के ऊपर पोल्स हैं दैट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। अब रोटर के ऊपर पोल्स में, बिकॉज रोटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, सो दो टाइप के पोल्स हो सकते हैं। वन इज कॉल्ड द सेलिएंट पोल्स। सेलिएंट पोल्स को सेलिएंट नेम से इंडिकेट है, इसको प्रोट्रूडिंग है या स्टिकिंग आउट ऑफ द सर्फेस, लाइक इट हैज सर्टेन प्रोजेक्शंस ऑन द सर्फेस। तो इसके जो पोल्स हैं वो कुछ ना कुछ जो है आपके पास सरफेस से जो है वो बाहर निकले हुए होंगे, जस्ट लाइक दिस वन, जैसे आपको जो प्रोजेक्शंस नजर आ रही हैं स्टेटर के रोटर्स के ऊपर, ठीक है, सॉरी रोटर के ऊपर। तो रोटर के जो पोल्स होंगे वो आपके पास जो वो सेलिएंट हो सकते हैं that stick out from the surface of the rotor, या दूसरी इनकी टाइप नॉन सेलिएंट है, the magnetic pole that flush with the rotor surface। ये आपके पास जो है वो नॉन सेलिएंट पोल्स हैं, जिनको जो है जिनमें आपके पास जो है वो प्रोट्रूडिंग नहीं है, दे आर विद इन द सरफेस ऑफ द रोटर। इस टाइप के पोल्स भी आपके पास हो सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ नॉन सेलिएंट रोटर एंड दिस इज अ सेलिएंट रोटर, दोनों की अपनी एप्लीकेशंस हैं। नॉन सेलिएंट को हम स्मॉल मशीन्स के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन जब हम लार्ज मशीन्स की तरफ जाएंगे सो वी हैव टू यूज द प्रोट्रूडिंग सर्फेसेस। इनका एडवांटेज आपके पास ये होगा कि आपके पास जो है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मशीन, कुछ सेलिएंट में जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मशीन कैन बी कंस्ट्रक्टेड एंड देन assembled later on. Non-salient poles are normally used for the 2 and 4 pole rotors, while salient pole rotors are used for 4 and more poles. अगर हमें 2 और 4 pole मशीन चाहिए, मतलब स्मॉल एप्लीकेशंस के लिए मशीन चाहिए, तो उसके लिए हम नॉन सेलियंट यूज करेंगे, जबकि सेलियंट पोल्स को जब हमारे पास लार्ज वोल्टेज की कोई मोटर होगी लार्ज एप्लीकेशन की, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मोटर रोटर होगा जनरेटर, तो उसके लिए हमने क्या करना होगा, सेलियंट पोल्स की तरफ जाएंगे। Salient poles are also called as the cylindrical राउंड रोटर्स, इनको हम कहते हैं राउंड रोटर्स, और इनको हम सिलेंड्रिकल रोटर्स भी बोलते हैं। सेलियंट पोल्स को हम जो है वो राउंड रोटर्स बोलते हैं, और आपको नॉन सिलेंडर को हम सिलेंड्रिकल रोटर्स भी बोलते हैं, बिकॉज दे जस्ट लाइक द शेप ऑफ ए सिलेंडर। ओके, सो दिस इज सिंक्रोनस मशीन, जिसमें हमारे पास ये आपकी फील्ड वाइंडिंग है विच इज ऑन द रोटर एंड द स्टेटर कंटेन्स द आर्मेचर वाइंडिंग। यहाँ पे देखिए आपके पास ये आपके पास जो है वो टू पोल सिलेंड्रिकल रोटर मशीन है, ठीक है, टू पोल्स हैं आपके पास, और ये सिलेंड्रिकल टाइप का मतलब नॉन सेलिएंट आपके पास, सो दिस इज जस्ट लाइक द शेप ऑफ ए सिलेंडर। जबकि आपके पास जो है वो जो दिस इज हाउ और फोर पोल सेलिएंट रोटर मशीन, जिसको हम राउंड रोटर भी बोलते हैं, वो आपके पास है। फील्ड वाइंडिंग इज अगेन ऑन द रोटर, आर्मेचर वाइंडिंग इज ऑन द स्टेटर। ये आपके पास फोर पोल्स हैं, देखिए 1 2 3 4 पोल्स आपको नजर आ रहे हैं। हर पोल अपनी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ये आपको जो क्रॉसेस नजर आ रहे हैं, डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को है कि इस नॉर्थ पोल से आपके पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड इस साउथ पोल की तरफ जा रही है, और यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे एंटर हो रही है, ठीक है। और आपके पास जो है इसमें आपके पास टू पोल सिलेंड्रिकल रोटर है, आपने देखा होगा। फोर पोल या सदा के लिए तरह हम जो है वो सेलिएंट रोटर्स यूज करते हैं। इसका एडवांटेज आपके पास ये होता है बिकॉज दैट कैन प्रोड्यूस द फ्रिक्शन इन द मशीन। सो अगर हम जो है वो सेलिएंट रोटर्स यूज करेंगे तो इससे हमारे पास ये जो है वो सरफेस के साथ स्ट्राइक आउट नहीं हो सकेंगे, इसलिए जो है वो हम इनको यूज करते हैं, सरफेस का स्ट्राइक नहीं हो सकती है।
large applications में. So we have to use these salient rotors for the large applications. Okay, this is again सिंक्रोनस मशीन. यहाँ पे आपके पास 2 पोल सेलियंट पोल जनरेटर का कॉन्सेप्ट है. सेलियंट यूज हो रहे हैं यहाँ पे 2 पोल्स के लिए. स्टेटर आपके पास लेमिनेटेड आयरन कोर का. यहाँ पे आपके पास रोटर है. रोटर के ऊपर जो है आपके पास डीसी वाइंडिंग हुई हुई है, ठीक है. और यहाँ पे आपके पास जो है वो स्लॉट्स हैं विद द फेज वाइंडिंग्स. ये जो है हमारे पास 3 सेट ऑफ फेजेस हैं, तो उनके लिए आपने जो है दरमियान में स्लॉट्स यूज की है हर वाइंडिंग को जो है वो सेपरेट करने के लिए एक दूसरे से, ताकि वो मिक्स ना हो. यही आपके पास कॉन्सेप्ट 4 पोल सेलियन पोल के लिए यूज हो रहा है. इसमें आपके पास क्योंकि 4 पोल्स हैं, तो आपके पास जो है हर पोल के अंदर जो आपके पास 3 फेज सेट ऑफ वाइंडिंग्स होगा. सो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक. आपके पास अगर जो है वो 4 पोल सेलियंट है, तो उसके लिए आपके पास जो है वो मैग्नेटिक 3 कौन सी सेट ऑफ वाइंडिंग्स आप यूज करेंगे. अब अगर आप यहाँ पे देखें, अच्छा ये आपके पास 4 पोल्स हैं, ठीक है. एक आपके पास 2 नॉर्थ पोल है, 2 आपके पास साउथ पोल है. हर 2 आपके पास पोल्स के अंदर आपके पास 3 फेज सेट ऑफ वोल्टेजेस हैं. बिकॉज आपके पास जब 4 पोल्स हैं, तो आपके पास 6 सेट ऑफ जो है वो वोल्टेजेस आएंगे यहाँ पे आपके पास, ठीक है. सिमिलरली दिस इज अ नॉन सेलियंट 2 पोल रोटर, ठीक है. दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक. और ये आपके पास जो है वो सेलियंट 6 पोल रोटर्स है. देख लें, ये आपके पास प्रोट्रूडिंग है और ये आपके पास बिल्कुल सिलेंड्रिकल शेप में आपके पास होता है. नॉर्मल 2 पोल्स के लिए मतलब छोटे लार्ज एप्लीकेशंस के लिए हम सेलियंट की तरफ जाएंगे, और स्मॉल एप्लीकेशंस के लिए वी विल मूव टुवर्ड्स द नॉन सेलियंट, ठीक है. दिस इज हाउ आपके पास जो है वो फिजिकली ये कैसे आपके पास दिखते हैं. अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट आपके पास ये है, बिकॉज द फील्ड वाइंडिंग इज ऑन द रोटर. तो आपके पास जो है वो अब रोटर को एक्साइट करने के लिए, मतलब रोटर के क्रॉस फील्ड प्रोड्यूस कराने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं जो है. इसके लिए आपके पास जो है वो डीसी करंट मस्ट बी सप्लाई टू द फील्ड सर्किट ऑन द रोटर बाय 2 अप्रोचेस. या तो हम ये करें, एक स्पेशल डीसी सोर्स यूज करें दैट इज माउंटेड डायरेक्टली ऑन द शाफ्ट ऑफ द जनरेटर, ठीक है. कि डायरेक्टली हमने यहाँ पे एक सोर्स लगाया हुआ रोटर के ऊपर, जो कि इसकी रोटर की शाफ्ट पे. शाफ्ट वो चीज है जिसके क्रॉस जब वो रोटर हैज टू बी रोटेटेड, ठीक है. इसके क्रॉस हमने एक सेपरेट डीसी सोर्स लगाया हो. या हमारे पास ये है कि हम जो है वो डीसी पावर सोर्स को जो है वो सप्लाई करें फ्रॉम एनी एक्सटर्नल डीसी सोर्स. तो एक्सटर्नल हम सोर्स लगा दें यहाँ पे, और बाय मींस ऑफ स्लिप रिंग्स एंड ब्रशेस जो है वो हम उसको एक्साइट करें रोटर को. या तो ये है कि हम रोटर के ऊपर ही कोई सोर्स लगा दें, या हम ये है कि रोटर को एक्सटर्नल सोर्स को यूजिंग कार्बन ब्रशेस एंड स्लिप रिंग्स जो है वो एक्साइट करें. अच्छा जी, we have 2 ways through which we can supply a current to a rotor या फीड वाइंडिंग को. उसमें जो है वो सेकंड वे जो है जिसमें हमारे पास कार्बन ब्रशेस एंड स्लिप रिंग्स यूज कर सकते हैं. एक्चुअली में स्लिप रिंग्स आर द मेटल रिंग्स दैट आर encircling the shaft of the machine but insulated from it. So ये जो होती हैं स्लिप रिंग्स मेटालिक रिंग्स हैं जस्ट. वो ये क्या होती है कि रोटर की शाफ्ट के साथ जो है वो सर्कल्ड हुई भी होती है, मतलब उससे कनेक्टेड होती हैं. और उसके साथ स्लिप रिंग्स के साथ जो है वो बिल्कुल ब्रशेस कनेक्टेड होते हैं. ये कार्बन के एक्चुअल में ब्रशेस होते हैं, जिसमें दैट्स व्हाई वी कॉल देम द कार्बन ब्रशेस. ये क्या करते हैं, दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी फ्रीली बट हैज अ वेरी लो फ्रिक्शन, सो इट डजंट वियर डाउन द स्लिप रिंग, ठीक है. सो ये रिंग के साथ जो है वो कनेक्टेड होते हैं कार्बन ब्रशेस. ये बिल्कुल जो है वो एक ब्लॉक होता है ग्रेफाइट का या कार्बन का, ठीक है. तो ये जैसे ही जो है वो हम आर्मेचर जो है वो मूव करता होता है, रोटर आपके पास मूव कर रहा है या आर्मेचर मूव कर रहा है, तो इसके साथ साथ आपके पास जो है क्योंकि इसकी शाफ्ट के पास ये रिंग्स कनेक्टेड होती हैं, तो जो है वो आपके पास ये रिंग्स भी मूव करेंगी, और इन रिंग्स के साथ ये ब्रशेस रिजाइड हुए हुए होते हैं. एंड दीज ब्रशेस आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल सोर्स. तो जो भी सोर्स है उसको हम जो भी सप्लाई दे रहे होते हैं, इन ब्रशेस के क्रॉस जो है वो हमारे पास, बिकॉज दे आर कंडक्टर, तो ये कंडक्ट करेंगे सोर्स की एनर्जी को. और स्लिप रिंग्स इनके साथ क्योंकि कनेक्टेड है, तो ये रिंग्स के क्रॉस जो है वो एनर्जी जो है वो आपके पास जो भी सोर्स है जो प्रोवाइड करोगा पोटेंशियल या सप्लाई, वो आपके पास रिंग्स के थ्रू आपके जो है वो फील्ड को प्रोवाइड हो जाएगी. एंड दिस इज हाउ मैग्नेटिक फील्ड वुड बी प्रोड्यूस.
One end of the DC rotor winding is tied to each of the two slip rings on the shaft of the synchronous machines, and the stationary brush rides on each slip rings, ताकि आपके पास जो है वो irrespective कि आपके पास जो है वो shaft move कर रही है, रोटर मूव कर रहा है, उसको एक कांस्टेंट जो है वो डीसी सप्लाई मिलती रहेगी. So supply, if positive end of the DC voltage source is connected to the one end and negative end is connected to the other, then the same DC voltage will be supplied to the field winding at all times, regardless of the angular position of the speed of the rotor. देखिए, हमारा जो है वो यहाँ पे इशू एक ये आ रहा था कि बिकॉज रोटर इज रोटेटिंग, तो उसके क्रॉस एक कांस्टेंट सोर्स हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज द कॉइल इज सेट टू बी रोटेटिंग. कॉइल अगर हम एक लेमैन की टर्म में लें, बट एक्चुअल में ये दीज आर द सेट ऑफ वाइंडिंग्स रोटर के क्रॉस व्हिच हैज टू बी रोटेटेड. अब उसके क्रॉस एक कांस्टेंट सोर्स जो है वो सप्लाई कनेक्ट करना वो हमारे लिए मुश्किल था, बिकॉज जैसे रोटर मूव करेगा तो वो जब सप्लाई डिस्कनेक्ट हो सकती है. सो दैट्स वाई उसके लिए हम क्या करें, कार्बन ब्रशेस और स्लिप रिंग्स यूज करें. कार्बन ब्रशेस उसका स्टेशनरी पार्ट है और रिंग्स उनके साथ डायरेक्टली रिसाइड हुई हुई होती हैं. तो स्टेशनरी पार्ट के क्रॉस हमने सोर्स कनेक्ट कर दिया, और तो वो कार्बन ब्रशेस के क्रॉस आपके सप्लाई आ जाएगी. ब्रशेस डायरेक्टली रिंग्स के साथ जो है वो इंटरकनेक्टेड है, और रिंग्स जो है वो रोटेटिंग कॉइल के साथ, मतलब आर्मेचर की शाफ्ट के साथ कनेक्टेड है. तो इररिस्पेक्टिव आपके पास कॉइल जितने एंगल से मूव करी है, जितनी पोजीशन से मूव करी है, जितनी स्पीड से मूव करी है, वी कैन सप्लाई अ कांस्टेंट source to that rotor या field winding. However, there were certain problems with the slip rings and the brushes. एक तो ये है कि because they are the mechanical parts, so they involve the maintenance. Brushes have to be checked for wear and tear regularly, and they have to be replaced whenever that required needed. Brush voltage drop. Similarly, brushes क्योंकि carbon के हैं, so there would be a certain potential drop across them that could contribute to the power loss of the machine with the large field current. अगर हमें large field current चाहिए तो उसके लिए जो है वो ब्रश के इसके क्रॉस भी ज्यादा पावर ड्रॉप होगा, जिसको हम ब्रश वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं. दैट कैन कंट्रीब्यूट टू द पावर लॉस. So slip rings and power brushes can be used for the small synchronous machines क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव है. लेकिन अगर हमें लार्ज एप्लीकेशंस के लिए चाहिए, लार्ज रेटिंग मशीन्स चाहिए, तो उसके लिए जितनी ज्यादा मेंटेनेंस, क्योंकि जितना लार्ज पार्ट होगा उसकी इतनी सारी मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है, इतनी वियर एंड टेयर रिक्वायर्ड होगी, इतने ज्यादा ब्रश वोल्टेज ड्रॉप can occur. So that's why small applications के लिए we can use these slip rings and carbon brushes, but large applications के लिए we have to move towards the brushless exciters. ब्रशलेस एक्साइटर्स जो हैं वो स्मॉल एसी जनरेटर्स हैं एक्चुअल में, और ये एसी जनरेटर है जिसका फीड सर्किट स्टेटर के ऊपर होता है, उसका आर्मेचर सर्किट जो है वो रोटर के ऊपर होता है. एक्चुअल में सिंक्रोनस जनरेटर के साथ वी हैव टू कनेक्ट एन एडिशनल स्मॉल जनरेटर जिनको हम ब्रशलेस एक्साइटर्स कहते हैं, और इस स्मॉल जनरेटर की जो फील्ड वाइंडिंग है वो स्टेटर के ऊपर होगी और आर्मेचर वाइंडिंग जो है उसकी रोटर के ऊपर होगी. ठीक है. और इससे क्या होगा कि हम जो है वो उसके आर्मेचर को, स्टेटर को हम क्या करेंगे, एक्साइट कर देंगे, और इसके थ्रू हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा ऑन द स्टेटर, और दैट्स व्हाई वी हैव टू, इसकी वजह से इंडक्शन फिनोमेना की वजह से हमारे पास जो है रोटर के क्रॉस वोल्टेज इंड्यूस होगा. वो जो सोर्स होगा, वो जो करंट होगा, वो एक्चुअल में एक्साइट करेगा रोटर की फील्ड वाइंडिंग को, because that is has to be AC. इंडक्शन इंड्यूस वोल्टेज हमारे पास AC है, तो इसको हमने क्या करना होगा, वी हैव टू रेक्टिफाई इट इनटू द DC, बिकॉज उसको तो सिंपल एक DC सोर्स चाहिए, DC करंट चाहिए वाइंडिंग को एक्साइट करने के लिए. सो दैट हैव टू बी रेक्टिफाइड यूजिंग रेक्टिफायर सर्किट, जो कि आपने देखे थे इलेक्ट्रॉनिक्स में कि हम डायोड्स वगैरह की एप्लीकेशंस यूज करते हैं फॉर दीज पर्पसेस. So we have to use a rectifier circuit, three-phase rectifier circuit, and it should be placed on the shaft of the generator. और ये क्या करेगा, उसको जो इंड्यूस वोल्टेज आ रही है 3 फेज उसको रेक्टिफाई करेगा डीसी में, और वो डीसी हमारे पास जो है मेन फील्ड को, सर्किट को जो है वो सप्लाई करेगी. So the field current on the main machine can be controlled by controlling the small DC current of the exciter generator located on the stator. सिमिलरली इसलिए कि अगर हमने अब जब मेन फील्ड, जो मेन मशीन हमारी सिंक्रोनस मशीन, उसके अगर हमने एक फील्ड करंट को एडजस्ट करना है जो कि रोटर के ऊपर है, अगर हमें उसके एडजस्ट करने के लिए हमने क्या करना होगा, ब्रशलेस एक्साइटर का जो स्टेटर के ऊपर हमारा जो करंट है डीसी करंट, सो उसको जो है वो एडजस्ट करना पड़ेगा. सो वी कैन एडजस्ट देम विदाउट स्लिप रिंग्स एंड कार्बन ब्रशेस. ऑल्दो ये एक कॉस्ट इनइफेक्टिव है बिकॉज हमें एडिशनल एक स्मॉल जनरेटर यूज करना पड़ रहा है, लेकिन इसमें हमारे पास क्योंकि लार्ज रेटिंग मशीन्स हैं, में हम मेंटेनेंस के ऊपर और पावर लॉस के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं कर सकते. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द ब्रशलेस एक्साइटर्स.
ये आपके पास ब्रशेस एक्साइटर्स हैं। ये आपके पास सिंक्रोनस मशीन है जिसकी मेन फील्ड है आपके पास रोटर के ऊपर, और इसकी जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो स्टेटर के ऊपर है, जहाँ से हमें 3 फेज़ आउटपुट मिल रही है। अब इसको मेन फील्ड को एक्साइट करने के लिए हमने यहाँ पे ब्रशलेस एक्साइटर्स यूज़ करने हैं। देखिए यहाँ पे इसको रेक्टिफायर सर्किट यूज़ हुआ है, 3 फेज़ रेक्टिफायर्स हैं जो कि जो भी इनकमिंग आ रही है इंड्यूस वोल्टेज उसको डीसी में कन्वर्ट करके यहाँ पे मैं कांस्टेंट करंट आया फील करंट देंगे फील वाइंडिंग को। ठीक है, और ये आपके पास एक्साइटर है, जिस एक्साइटर हमने देखा ब्रशलेस एक्साइटर, इसका जो फील का सर्किट है वो स्टेटर के ऊपर होगा और इसका आर्मेचर वाइंडिंग जो है वो रोटर के ऊपर है। तो यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे करंट दे रहे हैं इसको, बिकॉज़ 3 सेट ऑफ वाइंडिंग्स हैं, तो हमारे पास जो है वो इनपुट करंट हम देंगे जो कि बहुत स्मॉल होगा, ठीक है? अब उसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास जो वो फील्ड प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड, एंड ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द स्टेटर वी हैव अ इंड्यूस्ड वोल्टेज ऑन द रोटर। ये रोटर की वाइंडिंग्स के ऊपर आपके पास एक्साइटर आर्मेचर के ऊपर यहाँ पे जो है वो वोल्टेज इंड्यूस होगी, बिकॉज़ दैट इज़ द 3 फेज इंड्यूस्ड वोल्टेज। सो रेक्टिफायर सर्किट उसको डीसी फोर सोर्स में कनेक्ट करके सिंक्रोनस जनरेटर के रोटर को एक्साइट करेगा फील्ड करंट, और अगर हमने इस करंट को एडजस्ट करना होगा तो इनडायरेक्टली वी हैव टू कंट्रोल दिस इनपुट करंट, ताकि हम इस फील्ड करंट को एडजस्ट कर सकें। सो वी हैव दिस आरएफ, ये हमारे पास फील्ड रेजिस्टर है, वेरिएबल रेजिस्टर हमने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। सो इंस्टेड कि हम इनपुट को हर दफा जो है वो वेरी करें, यहाँ पे हम इस रेजिस्टर की वैल्यू को एडजस्ट करके वी कैन कंट्रोल दिस आईएफ, बिकॉज यू नो दैट अगर हम आरएफ की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो आईएफ कम होगा, इसको हम कम करेंगे तो हमारे पास आईएफ क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। So this is brushless exciters. This is synchronous machine main field, जो कि हमारे पास जो है वो रोटर है, ठीक है। मेन आर्मेचर आपके पास जो है वो यहाँ पे स्टेटर के ऊपर है, जिसको आप 3 फेज आउटपुट यहाँ से ले रहे हैं, रेड येलो एंड ब्लू। और ये दिस इज हाउ ये आपके पास 3 फेज जनरेटर जो है वो 3 फेज लोड को सप्लाई कर रहा है यूजिंग अ 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन। और ये आपके पास जो है वो आर्मेचर है आपके पास, ठीक है, स्टेटर है बेसिकली, जहाँ पे आर्मेचर वाइंडिंग जो है वो प्लेस्ड है। अच्छा, अब सम टाइम आपके पास ऐसा भी होता है कि ब्रशलेस एक्साइटर्स के लिए जो है वो हमारे पास हमें एडिशनल जो है वो वाइंडिंग्स कनेक्ट करनी पड़ती हैं। सो उसके लिए हम सम टाइम ये भी यूज़ करते हैं, इंस्टेड के हम यूज़ करें ब्रशलेस एक्साइटर्स, वी कैन मूव टुवर्ड्स द पायलट एक्साइटर्स। पायलट एक्साइटर्स एक्चुअल में आपके पास जो है वो एक स्मॉल परमानेंट मैग्नेट है दैट शुड बी प्लेस्ड ऑन द शाफ्ट ऑफ द रोटर। और ये क्या करेगा, ये आपके पास जो है वो उसको सप्लाई करेगा, आई फील्ड करंट को सप्लाई करेगा। सो वी हैव अ परमानेंट मैग्नेट ऑन द शाफ्ट ऑफ द रोटर। ये क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस कराएंगे, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है आपके पास मेन फील्ड को जो है करेगी, लेकिन क्योंकि वो परमानेंट मैग्नेट्स हैं, आगे जो है वो आपके पास यहाँ पे आपके पास एक्साइटर सर्किट है। ये परमानेंट मैग्नेट्स की वजह से यहाँ पे आपके पास जो वोल्टेज इंड्यूस होगा, ये इंड्यूस वोल्टेज हमारे पास जो है ये इसको वोल्टेज इंड्यूस होगा यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट्स की वजह से स्टेटर के ऊपर। ये इसको अगेन वो क्योंकि स्टेटर 3 फेज सेट ऑफ वोल्टेजेस है, वो उसको रेक्टिफाई करेंगे, रेक्टिफाई करके वो उसको डीसी में कन्वर्ट करेंगे, और उस डीसी की वजह से हमारे पास आर्मेचर में जो है वो एक्साइटेशन होगी, अगेन वो इंड्यूस वोल्टेज के फिनोमेना की वजह से आपके पास जो है वो अल्टरनेटिंग होगी। सो रेक्टिफायर के थ्रू वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द मेन फील्ड, और इस मेन फील्ड को हम सप्लाई करेंगे। सो दिस इज हाउ इंस्टेड के हम जो है वो ब्रशेस एक्साइटर्स यूज करें, ब्रशेस एक्साइटर्स के अंदर वी कैन यूज द पायलट एक्साइटर्स दैट वुड बी अ परमानेंट मैग्नेट। सो इन बोथ वेज इट कैन बी electromagnet, or we can use a permanent magnet if we are going for the brushless solutions. So this is a generator that is turned by the turbine, ठीक है, जनरेटर है जिसको हम टरबाइन के थ्रू चला रहे हैं, और ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है। ये हमारे पास जो है वो रिजर्वायर्स हैं, वाटर सोर्स के रिजर्वायर्स हैं, टरबाइन टर्न बाय द फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर। यहाँ पे हम क्या करें कि पानी को हायर लेवल से गिराते हैं, तो आपके पास जो है वो ये टरबाइन जो है वो चलेगी, ठीक है।
और जो है वो जब ये चलेगी तो प्राइम मूवर ये इसके एक्सेस को जो है वो सर्टेन उससे मूव कराएगा इसके रोटर को, और इसके रोटेशन की वजह से हमारे पास वोल्टेज इंड्यूस होगी। और ये जो है वो ट्रांसमिशन लाइंस हैं दैट इज कैरिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द होम्स एंड बिजनेसेस एक्सेट्रा, एंड दिस इज अ डैम दैट रेजेस वाटर लेवल क्रिएटिंग अ ड्रॉप ऑफ वाटर। ठीक है, डैम के अंदर हम जो है वो वाटर लेवल को जो है वो फॉल कराते हैं सर्टन लेवल से, तो आपके पास जो है वो फोर्स क्रिएट होती है, वो फोर्स जो है वो इस टरबाइन को मूव कराती है। ठीक है, और आपके पास जो है वो एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। सो आई होप सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल मूव टुवर्ड्स द कंस्ट्रक्शन एंड the synchronous generator, their equivalent circuit and their phasor diagrams. I hope so आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह समझ आएगा। If you have any queries we can discuss in the online session. Till then अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।